Good morning, Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and again in this video. I hope so that I am just giving you such chapters which are coming in your examinations, and I hope so that you will enjoy and read all the chapter, understand all the chapter. I am just telling here your summaries about the chapters. If you guys are having any problem, any type of problem to understand the chapter, to understand the meaning of the chapter, you please comment, and if I'll see the comment, I would definitely call to you. And if I don't have your number, you can just please put your number so I can easily call to you. So now, today I am Qadir Siddiqui going to explain this one of the book chapter, that is one of the wonderful chapter everyone knows, deep water, from class 12th. And deep water, this is a chapter for a boy who was fearing so much of water. He just got phobia, a type of phobia that means people started fearing. So well, the chapter name is Deep Water, and this chapter is written by William Douglas. Okay, Deep Water, which is written by William Douglas. So in this chapter, I will tell you in Hindi so that you can easily understand. In this chapter, author has experienced 2 times of fearing water. At the time of 4 years, when he was about 4 years, and the wave comes and knocks him down, and he was about to drown into the sea. That was his first fear. Second, a bully person means throws him into the deep water, and he was also about to drown in that. So well, let's start. I'm just going to read some paragraph so that you can easily get what I'm just saying to you. After reading that paragraph, I will tell you each and everything about the chapter. How was the experience that he was having when he was going into the water, into the deep water. And this chapter is, I think this chapter I have explained you, even I am just explaining so that those students who haven't understood the chapter will understand easily. So here the author tells about how he overcomes the deep-rooted fear of water following 2 years to very dreadful incident. Okay, authors is telling कि वो किस तरह से 2 घटनाओं से जूझा था. 2 घटनाओं से, कौन सी 2 घटनाओं से? पहली घटना ये थी कि जब वो अपने फादर के साथ 4 इयर्स का था, अपने फादर के साथ स्विमिंग कर रहा था, तो एक लहर आई और उसको नॉक किया, जिससे वो नीचे गिर पड़ा पानी में, और उसे एक फोबिया टाइप का हो गया था. ठीक है, फोबिया एक डर होता, खौफ होता किसी चीज़ का भी. तो जब वो किसी बंदे के अंदर आ जाता है तो बड़ी मुश्किल से जाता है. लेकिन इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह से उसने इस फोबिया को ख़त्म किया. दूसरा इंसिडेंट था कि वो जो ऑथर है, ऑथर क्या करता, ऑथर एक दिन बैठा होता है पुल के पास, और वहाँ एक बुली टाइप का लड़का जिसकी उम्र 16 साल की होती है, वो हट्टा कट्टा था, और वो ऑथर्स को उठाकर पानी में फेंक देता है. दूसरा इंसिडेंट ये था, तब वो 11 साल का था, तब वो 11 इयर्स ओल्ड था, तो उसको फेंक देता है उसमें. तो वो ये दोनों एक्सपीरियंस यहाँ कर रहा है. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. इसको हम थोड़ा सा डीपली कोशिश करेंगे, बट प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स को अभी हमने आपको बताया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 इंसिडेंट को फेस किया हुआ है. फर्स्ट 11 इयर्स ओल्ड में, और फर्स्ट 4 इयर्स ओल्ड एंड सेकंड 11 इयर्स ओल्ड में. तो फर्स्ट जो
4 इयर्स में इन्होंने इंसिडेंट को फेस किया हुआ था। वो एक समुद्र में अपने पिता के साथ थे एंड ही was just swimming in the sea and with his father, but suddenly a wave comes to him and knocks him down and he falls down into the sea, and that was the experience that he doesn't want to forget. वो एक्सपीरियंस है जो वो भूलना नहीं चाहता। अक्सर कोई भी नहीं भूलना चाहता होगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें हम लोग शायद अपना यही भूल जाते हैं कि हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे ऐसी कंडीशन में। सो सेकंड 11 इयर्स ओल्ड में था अब जब उसका एक फेयर तो बीच में आ ही चुका था और दूसरा एक और फेयर आ रहा था, ऐसा डरावना डर जो कि निकलने का नाम नहीं लेता, जो जाने का नाम नहीं लेता। तो वो था 11 इयर्स ओल्ड में। ठीक है, 11 इयर्स ओल्ड में एक इन्होंने स्विमिंग पूल में तैरने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। ही वॉज़ वेरी ईगर टू जस्ट स्विम, ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग। वंस इन्होंने सीखना शुरू किया, 2-3 दिन वहाँ गए और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की ऑथर्स ने। एक दिन वहाँ पर कोई नहीं आया, सो ही वॉज सिटिंग अलोन एंड एक बुली यानी कि एक हट्टा कट्टा, बुली मतलब होता है हट्टा कट्टा लड़का जिसकी 16 साल की उम्र थी, लेकिन वो चौड़ा लंबा था। और उसने उससे ऑथर्स से कहा लगता है आज कोई आया नहीं तो पानी का मज़ा आपको मतलब तुम्हें चखा दें। तो उसने क्या किया, उसने ऑथर्स को उठाया और पानी में फेंक दिया। अब नाउ द कंडीशन, यू सी कंडीशन क्या होती है उसकी कि ऑथर्स पानी में जा रहे हैं और वो घबरा गया। ही वॉज feared so much, was fearing so much while going to the water। और वो पानी में जाते जाते ये सोच रहे हैं कि अब जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो हम इसमें अपना पैर जो फर्श है उस फर्श पे ज़ोर से किक करेंगे जिसकी वजह से हम ऊपर आ जाएंगे। लेकिन वो ऐसा सोचते सोचते उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है पानी के, और जैसे ही उसको फर्श यानी कि जो फ्लोर मिलता है उस पर वो किक करता है, ठीक है, प्रेशर करता है जिसकी वजह से वो ऊपर आने की कोशिश करता, बट वो नहीं आ पाता। ही रिपीट्स दिस एक्शन 2 and 3 times, बट ही वॉज फीलिंग अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। दूसरी बार में वो आता भी तो थोड़ा सा इतना नाक के बराबर आ पाता था, सांस लेकर फिर नीचे पहुंचता है और उसकी सांस घटने लगी थी, दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी, उसके हाथ पैर बिल्कुल कॉन्शियस पड़ गए थे, यानी कि सुन्न पड़ गए थे, बिल्कुल उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। फिर भी वो अपने दृढ़ फिर्म डिटर्मिनेशन के बिहाफ पर वो ये सोच रहा था कि हम फिर जाएंगे नीचे और उसके बाद जंप करेंगे, लेकिन उसमें इतना पावर, इतनी एक्शन नहीं बचा था कि जिससे वो फोर्स लगा पाता। अब उससे बस वो नीचे जा रहा था, बस उसे ये लग रहा था कि बस उसका दिमाग और दिल काम कर रहा है, बाकी सारे पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। ही वॉज कंसिडरिंग दैट दिस विल बी हिज लास्ट डे। सडनली ही कम्स आउट, लेकिन वो फिर वो बाहर आ जाता है, और व्हेन ही कम्स आउट तो जो भी उनको बाहर निकालते होते हैं उसको बाहर, तो उस बुली से बोलते हैं कि यू शुड हैव नॉट थ्रोन हिम इनटू द वाटर व्हेन यू न्यू अबाउट हिम दैट ही डजंट नो हाउ टू स्विम। देन बुलीज रिप्लाइज, वो बोलते कि मुझे तो नहीं पता था, मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था। एंड याद रखिए, एक जो स्विमिंग होता है, जहाँ हम लोग पूल होता है, पूल थोड़ा सा इस साइड का ऐसा होता है, पहले तो थोड़ी सी गहराई होती है, फिर उसके बाद और गहराई चली जाती है नीचे, ठीक है। तो वो 9 फीट का गहराई में डूब रहा था, और 9 फीट बहुत ज़्यादा होता है, और 11 इयर्स का बच्चा डूब तो जाएगा ही। तो when he goes his home, authors goes his home, he sleeps and becomes a fall ill, मतलब बीमार पड़ जाता है, एंड he started feeling influenza also. After 3 days he recovers himself. तो उसके बाद कई सालों बाद ही ऑल्सो ट्राइस, ही आफ्टर सम ईयर्स ही ऑल्सो ट्राइस, क्योंकि उसका तो अंदर का डिटर्मिनेशन था, एक फिर डिटर्मिनेशन थी कि उसे कुछ करना है, उसे सीखना है, स्विमिंग सीखना है। और जैसे ही उसके साथ 2 इंसिडेंट हो जाते हैं तो वो ये सोचता है कि अब जैसे ही जब भी वो पानी को देखता था उसके अंदर एक फोबिया आ गया था। एक आप लोग ने बीमारी का नाम सुना होगा, हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिससे इंसान क्या होता है, पानी से डरने लगता है, जिससे इंसान पानी से डरने लगता है, जो शायद डॉग के काटने से हो जाती है, और जिससे आपको कभी रेबीज़ भी हो जाती है। रेबीज़ तो अक्सर आप लोग को पता है कि रेबीज़ तभी होती है जब कोई डॉग हो, उसके मुंह से अगर सलाइवा गिरता है तो अगर वो किसी को काट ले तो उसको रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया टाइप की बीमारी हो जाती है। तो इसमें ऐसा इनके साथ कुछ नहीं था, लेकिन इनके अंदर एक फ़ोबिया इस वजह से आ गया था कि 2 इंसिडेंट को फेस कर चुके थे। ठीक है, 2 इंसिडेंट को इन्होंने फेस कर लिया था। अब जब 2 इंसिडेंट को इन्होंने फेस कर लिया था तो अब इनका मन कर रहा था कि अगर ये दोबारा पानी में गए तो इनके अंदर का जो फ़ोबिया था वो बाहर आ जाता था, वो एकदम बिल्कुल बूस्टअप हो जाता था। इनके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते थे, काम करने का मन ही नहीं करता, मतलब पानी में उतरने का मन ही नहीं करता था। इवन ही ट्राइस फिर भी वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कई बीचेस पर जाते हैं। एक बार इन्होंने क्या सोचा कि वाई डोंट आई ट्राई हायर वन ऑफ द स्विमर। उन्होंने बोला एक स्विमर को, जो तैराक होते हैं उनको हायर कर लेते, वो हमें सिखाएंगे। तो उसने इनको सिखाना शुरू कर दिया। तो जब भी इनको तैरना होता था तो इनकी जो शर्ट, पीछे की शर्ट को पकड़कर इस तरह से तैरना सिखाया करते थे। ठीक है, तो वो पकड़े रहते थे और वो अपने हैंड्स को मूवमेंट करते रहते थे जिससे वो आगे पीछे स्विमिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने इस तरह से कुछ स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन जब भी वो पानी में जाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। एक दिन तो इन्होंने अकेले इसको सीखना